Hi, good morning everyone. Welcome to our new chapter, statistics. Okay, so first, very beginning, you must know what is a statistics. For finding this one, okay, what is a statistic? I have one example in that. Okay, suppose this is a one person here. So this is a one person, and here is a group of persons like that. Okay, so here is a group of persons, so I make a cartoon like that. Okay, so it's a group of persons. Okay, that person wants some information from that. Okay, if that person wants some information from that, so what he will do first collect the data in the form of numerical figure. Okay, he will collect the data. Very first step, what he will do, he will collect the data. Okay, after collecting the data, he will think about that, what data he collected, what information he collected from this group of person, how to present this one. Okay, so after collection, that person, he think about presentation. Okay, how to present in the shortest form, so that is a presentation. Okay, after presentation, he think about analysis. Analysis means he will do some experiment on that data. Okay, so after doing the experiment, last step is interpret. Interpret means conclusion. Interpret. After doing the experiment, he found the conclusion. So by going these four steps, collection, presentation, analysis and interpretation, so when this four process is going on, combination of this four process is called a statistic. So that is a statistic. Or we can say that statistics is a science which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Okay, so that is a basic concept of the statistics. Next is, what is a data? What is a data? Next concept is, what is a data? Data is the information in the form of numerical figures like 1, 2, 3. So when you get the information in the form of numerical figures, so that is your data. Okay, so that data we can use for presentation, experiment and after the conclusion, after the decision. Interpretation we can also that according to the data, so which type of decision should be taken. So where we use basically the statistics, so mostly government, industrialist, businessmen, farmers, meteorologists, etc. So their data is in the form of numerical form. Like if we go talk about farmers, farmer means when how much like seeds they are used, so that is a quantity, because according to the area of the field, farmer has to choose a quantity of the seeds. Okay, so that is the quantity collection present as the data. And presentation means this year that farmer buy this much quantity of seeds and next year he will buy this much quantity of the seeds. So that presentation, like how to present in front of this, you can't say every time like in the words form. Okay, so you can look at yourself. If you saw the book, if your book is not attractive to you, like instead of if like some essay is given to you, so always you will avoid to read the essay. Okay, so instead of this reading the essay, if that same particular topic is given you in the picture form, so you can easily understand and interpret in your
own language. So that is also part of statistic in your day-to-day life. Suppose your English teacher give you one picture, Hindi teacher give you one picture, and they said that by watching at that picture you have to generate an essay. Okay, so what you will do? First you will think about the picture. Okay, so that thinking about the picture is the collection. You are collecting the data regarding what is present in the picture. Yes, you are collecting the data what is present regarding the picture in your mind. Okay, after collecting this you will create this scenario in your mind, so that is a presentation. Okay, after creating the scenario you will do experiment how you will write according to that picture. So that is analysis, that is going on in your mind. Okay, after analysis, final step is you are writing in your notebook. You are writing in your notebook after analyzing. So that is interpretation. So that also works, because statistic is work in every step of our life. So I give you the example of that. So here, if this person want information from this group of person, so what he will do? He will communicate to this group, collect the data, think about the present, how he present the data, analyze it, do experiment, and after doing the experiment he will goes on some decision. Okay, so that is interpretation, and this 4 topic combination we call it statistics. Okay, next is types of data. So what are the types of data? Okay, now think about what are the types of data. If this is my same person here, okay, so this is limited group of persons like this. So this is limited group of person. Okay, so if when person want to communicate this one, okay, so quantity is very less. Okay, he can directly go to that person and collect the information and receive the information. You move there, communicate with them and receive the information. Okay, when he received the information in this way, directly he went to the group of people and received the information. So that we call it primary data. So that is a primary data. Okay, but when same person here, so this is a large number of groups, so there are many person in there, so it very difficult to contact directly to that group of people. Very difficult means impossible, like that. Suppose person has to go to collect the population of the particular area, and area is bigger one. Okay, so in this case person can't go to door to collect how many members are there at your house, how many are there, like that. Person can't go to door. Okay, so if this group is large, like here in this number of large peoples are there, so this person want to collect the data, but he can't go directly to that one. Okay, when he can't go to directly that one, so what he think about, he find the another way. Okay, so he will contact an agency, different type of agency that are used to do the work for the person. So that person contact this agency, okay, and tell about his requirement, and that agency collect the data from that by some resources. So that is a third person, because if person collect the data from the third source, he can't directly move to that group of people, or can't directly go to collect the data. So that we call it secondary data.
Okay, so I give you one example for that. Suppose you want to make a project in your subject. Okay, suppose your teacher give you a topic that, okay, go to the shop and collect the information of the different products and prices. Okay, you make the chart for the different products, what are products available in one shop and what are prices he marked that's by the shopkeeper. If person directly go to the shop and just sit there and note down the details, so that we call it primary data. Or he can send some his friend, like you are not want to go, or you told to your father, okay papa, you can go and please help us to collect the information. So that is also come under the primary data, because in primary data either person can go himself, या पर्सन खुद चला जाए दुकान पे, या वो किसी को बोल दे कि अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे डाटा पर्सन टू पर्सन कलेक्ट करने के लिए, वो प्राइमरी डाटा की कैटेगरी में आता है। अब अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दुकान की, ना उसके पापा को भी काम है, वो भी नहीं जा सकता और बाहर नहीं जा सकता, जैसे अभी बहुत कोरोना वायरस आ रहा है, तो उस कंडीशन पे अगर उसको प्रोजेक्ट बनाना है तो वो क्या करेगा, तो वो नहीं जा सकता। उस कंडीशन में वो देखेगा कि हाँ एक जनरल शॉप है, उसमें ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली रहती हैं, एक जनरल रेट वो देखेगा, तो उसके लिए वो कोई वेबसाइट या इंटरनेट का यूज़ करेगा। वेबसाइट और इंटरनेट जहाँ पे उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएंगी। अब जैसे ही उसको सारी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगी वेबसाइट से या इंटरनेट से, पर्टिकुलर वेबसाइट से, तो ये सारा आता है आपका सेकेंडरी डाटा, कि जहाँ पे पर्सन खुद जाके इन्फॉर्मेशन ना कलेक्ट कर सके, कोई ऐसा सोर्स या कोई एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। ओके, तो उसको हम सेकेंडरी डाटा की कैटेगरी में कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि डाटा कलेक्टेड टू नो द डिफरेंट गेम्स प्लेड बाय द स्टूडेंट्स। मान लो आपके स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर आते हैं आपकी क्लास में। ओके, वो आप क्या पूछते हैं, एक आपको क्लास वाइज ये बोल के जाते हैं कि हाँ जिसने जो गेम खेलनी है वो अपना नेम उस गेम के अंडर दे दो। ओके, वो तो अब स्पोर्ट्स पर्सन खुद आया आपकी क्लास में डाटा कलेक्ट करके ले गया कि हाँ इतने स्टूडेंट ने क्रिकेट खेलना है, इतने स्टूडेंट ने फुटबॉल खेलना है, इतने स्टूडेंट ने ये गेम खेलनी है, से 4 गेम की ऑप्शन दी। तो वो स्पोर्ट्स पर्सन आपकी क्लास में खुद आके आपकी कलेक्शन, दैट इज़ अ डाटा कलेक्शन, ये प्राइमरी डाटा आ गया। ओके, अब अगर आपको मोगा की एक स्पोर्ट्स कंपनी है, वो चाह रही है कि उसको स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर कि कितने स्टूडेंट, अगर वो कोई नेशनल लेवल का गेम खिलवाना चाह रहा है स्टूडेंट से, तो उसको अगर क्रिकेट में या बास्केटबॉल में स्टूडेंट की क्वांटिटी कलेक्ट करनी है, तो वो क्या बोलेगा, वो स्कूल को बोलेगा, खुद तो नहीं आएगा ना, वो स्कूल को बोलेगा कि अपने अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन दे दो कि आपके कौन से कैंडिडेट्स हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाले। तो ये तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेकेंडरी डाटा के अंदर आती है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि या रिपोर्ट्स जो पब्लिश करते हैं कि हाँ इस एरिया में इतने स्टूडेंट नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, ये सारे जो वेबसाइट में, ये भी आपका सेकेंडरी डाटा में आता है। अल्टीमेटली ये है कि पर्सन खुद ना जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करता है, ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइजेशन तो फ्री में तो काम करेगी नहीं, तो इसके लिए इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, रुपीज़ में पेमेंट देगा, पेमेंट के बदले में ये ऑर्गेनाइजेशन उसको डाटा कलेक्ट करके इस पर्सन को प्रोवाइड करेगी। ओके, या अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट नहीं करता, किसी वेबसाइट या इंटरनेट को कनेक्ट कर रहा है, तो वो भी सेकेंडरी कैटेगरी में आता, तो उसमें उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द कैटेगरी। नेक्स्ट इज योर रॉ डाटा। नेक्स्ट इज रॉ डाटा। रॉ डाटा में अगर किसी ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो एज इट इज़ ही जैसे कलेक्ट की है वैसे ही लिखी जाती है डायरेक्टली, कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता। इसको हम बोलते हैं रॉ डाटा। रॉ डाटा में सपोज़ किसी की 11 प्लेयर्स क्रिकेट टीम के अंडर हैं। ओके, एक मैच में अगर किन्होंने मैच खेला, स्कोर बनाए हैं, ओके, तो जैसे जैसे उसके स्कोर आते गए वही लिखते कि हाँ फर्स्ट पर्सन ने 23 स्कोर बनाए हैं,
सेकंड पर्सन ने 15 बनाए हैं, थर्ड ने 30 बनाए हैं, फिर 35 बनाए हैं, उसके बाद फिर आ गया 23 बनाए हैं। तो जैसे ही आपका डाटा रिसीव हुआ वैसे ही हमने लिख दिया, तो ये आता है रॉ डाटा। अब आता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा और अंडरस्टैंडिंग डाटा। इसको हम अंडरस्टैंडिंग डाटा की भी कैटेगरी में रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग डाटा। ओके, प्रेजेंटेशन, दिस इज प्रेजेंटेशन प्रॉपर वर्ड। ओके, ऑर्गेनाइज डाटा, अंडरस्टैंडिंग डाटा। तो ऑर्गेनाइज डाटा और अंडरस्टैंडिंग डाटा इज अ सेम थिंग। ये पहले तो आपको डाटा को एक प्रॉपर वे से समझना है कि डाटा क्या है। ओके, इस आई हैव वन एग्जांपल। इफ़ यू हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, लाइक अभी मैं स्पोर्ट्स की आपको एग्जांपल दे रही हूँ। क्रिकेट, जैसे एक स्पोर्ट टीचर आया आपके पास, उसने 4 आपको स्पोर्ट्स की ऑप्शन दे दी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड अदर्स, और उसमें छोटी मोटी दूसरी गेम्स रख दी। ओके, मेजर ये थी क्रिकेट, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। ओके, अब उसने आपकी क्लास को बोल दिया कि हाँ लिस्ट बना दो कि हाँ इतने स्टूडेंट ने क्रिकेट खेलना है, इतने स्टूडेंट ने बास्केटबॉल है, इतने स्टूडेंट वॉलीबॉल के अंडर है। ओके, या इतने स्टूडेंट कोई अदर स्पोर्ट्स के अंडर है। ओके, अब अगर मान लो फर्स्ट स्टूडेंट बोल रहा है कि हाँ मैं क्रिकेट में हूँ, बारी बारी से एक स्टूडेंट जैसे क्लास का मॉनिटर ही होता है कि हाँ कलेक्ट कर रहा है। अब क्लास में खड़ा हो गया, रोल नंबर वाइज पूछा, फर्स्ट रोल नंबर बोल रहा है मुझे क्रिकेट खेलना है, तो उसने 1 लिख दिया। ओके, सेकंड वाला बोल रहा है मुझे बास्केटबॉल खेलना है, बास्केटबॉल में भी 1 स्टूडेंट आ गया, वॉलीबॉल में भी उसने बोला कि हाँ 1 स्टूडेंट एक और हो गया। 4 रोल नंबर बोल रहा है कि मुझे अदर्स में जाना है, तो क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और अदर्स। ओके, मान लो क्रिकेट में एक और ऐड हो गया, तो 2 स्टूडेंट आ गए, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स आ गए, नेक्स्ट 3 रोल नंबर्स बास्केटबॉल में आ गए, नेक्स्ट 4 स्टूडेंट्स आ गए वॉलीबॉल। तो टोटल कितने स्टूडेंट हुए? सपोज यहाँ पे 3 हुए, यहाँ पे 4 हुए, यहाँ पे 5 हुए, यहाँ पे अदर्स में अभी 1 ही गया। तो इस तरह से बार बार लिखना, 3 4 5, 2 स्टूडेंट हो गए, 3 स्टूडेंट हो गए, पिछला नंबर को मेमोराइज करना पड़ता है कि हाँ पहले कितने स्टूडेंट थे, फिर उसमें 1 ऐड करना पड़ता है। तो इट विल बी वेरी टीडियस जॉब। ओके, तो इट विल बी वेरी टीडियस जॉब। ओके, तो हम इस तरह से हम कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं करते। तो उसके लिए मेरे पास आता है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स में क्या होता है कि मुझे इस तरह से मेंशन ही नहीं करना कि हाँ इतने स्टूडेंट हो गए, इतने स्टूडेंट हो गए। तो जब भी काउंटिंग करनी है तो हम एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से काउंटिंग करनी है। अगर मान लो 3 स्टूडेंट हुए तो हम 3 वर्टिकल्स लाइन लगा देंगे। अगर मेरे पास 1 स्टूडेंट हुए क्रिकेट में, जैसे 3 स्टूडेंट है तो यहाँ पे मैं 3 वर्टिकल्स लाइन लगा दूंगी। 4 स्टूडेंट है तो 4 वर्टिकल्स लाइन आ जाएगी। अगर एक ही स्टूडेंट है तो 1 वर्टिकल लाइन आ जाएगी। ओके, बट अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट है तो 5 स्टूडेंट में मैं 4 वर्टिकल्स लाइन के बाद 5 वाली यहाँ पे क्रॉस कर दूंगी, 5 वाली लाइन। क्यों मैंने यहाँ पे 5 क्रॉस क्यों किया? क्यों मैंने यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 क्यों नहीं लिखा? ओके, उसका एक रीज़न है कि क्यों मैं यहाँ पे एक 5 जैसे ही होता है 1 2 3 4 5 हम यहाँ पे क्रॉस लाइन। और रिमेंबर वन थिंग, हमेशा यहाँ राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम तक ही आपने एक लाइन रेंज करनी है, 5th वाली लाइन। ओके, क्यों ये हमें 5 का ग्रुप बनाया, क्यों हमने ऐसे नहीं लिखा, उसका एक रीज़न है। अगर मैं सिर्फ लाइन्स ही ऐसे कॉन्टीन्यूसली लगाती जाऊंगी तो मुझे तो फिर से काउंट करना पड़ेगा, फिर से मेरे लिए जॉब क्या होगी, हैक्टिक होगी। और मेरा स्टैटिस्टिक का पर्सन यही है कि मेरा जॉब ऐसे हो कि ऐसी प्रेजेंटेशन हो कि मुझे देखते ही क्वांटिटी पता चल जाए, मुझे उसको काउंट ना करना पड़े। तो इसी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, तो 5 का ग्रुप बनाया गया कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 5 और स्टूडेंट ऐड हो जाते हैं, 10 स्टूडेंट है, तो मेरे पास इस तरह से 5 5 के 2 ग्रुप्स बन जाएंगे 10। अगर यहाँ भी मेरे मान लो 8 स्टूडेंट ऐड हो जाते हैं तो 4 + 8 कितना हो गया, 12। तो 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12।
सो आई कैन ईजिली राइट दिस वे। तो यहाँ से मुझे लाइंस काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ए ग्रुप मेरा 5 का है, 5 5 10 प्लस 2 12। पर अगर मेरे यहाँ पे मान लो और 7 स्टूडेंट ऐड हो जाते हैं या 9 स्टूडेंट ऐड हो जाते हैं, आई विल टेक 8 सो इफ़ 8 स्टूडेंट आर एडेड मोर इट हियर, तो यहाँ पे हमें पिछले स्टूडेंट में ऐड करने के बजाय अगर मैं इस वे से प्रेजेंट करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ये मेरा 8 काउंटिंग होगी। अब टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, अब देखो इजीली यहाँ पे कितने थे 11 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 1, और जब आपने काउंटिंग की तो ये आपका आ गया 10 प्लस 10 20 10 30 34, टोटल 34 स्टूडेंट्स थे क्लास में। और 34 स्टूडेंट की डिवीज़न कि इसमें 11 किस में चले गए, क्रिकेट में, 12 किस में गए, बास्केटबॉल में, ओके, और 10 किस में गए, वॉलीबॉल में। तो यहाँ पे हमें लाइंस काउंट करने की जरूरत नहीं है, आई कैन ईजिली शो विद द क्वांटिटी कि हाँ इतने स्टूडेंट मेरे काउंट हो गए, और इसको हम बोलते हैं टैली मार्क्स, ओके। अब इसकी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे, अभी जैसे ये कितने हैं मेरे पास 11, तो एक अलग कॉलम बनेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हेडिंग रहेगा, उसके फ्रंट पे आप लिखोगे ये 11 स्टूडेंट है, ये 12 स्टूडेंट है, ये 10 स्टूडेंट है और ये 1। तो ये जो 10 12 और 11 क्वांटिटी में लिख रही हूँ, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार कितने स्टूडेंट ने एक ही टॉपिक चूज़ किया है क्रिकेट का, कितने ही स्टूडेंट ने क्रिकेट का टॉपिक चूज़ किया है, कितने स्टूडेंट ने बास्केटबॉल चूज़ किया, कितने स्टूडेंट ने वॉलीबॉल चूज़ किया, किन्होंने अदर्स चूज़ किया। अब आ गया आपका रेंज से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसमें हम सपोज मेरे पास डाटा है आपका 12 16 12 6 18 2 and 4. Now I am discussing about mean, median and mode. Okay, so what is the mean of mean, median and mode? That is another presentation of data. Suppose मेरे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अगर तो मुझे मीन निकालना है तो मैं क्या करूँगी, आई विल ऐड ऑल द एलिमेंट्स 6 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 4 मैंने ऐड किया, और 1 2 3 4 5 6 7 क्वांटिटी कितनी थी 7, क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने ऊपर सबको ऐड किया तो ये मेरा आ गया 70/7 इज इक्वल टू 10। तो ये मेरा आ गया 70/7 इज इक्वल टू 10। अब अगर मुझे मीडियन लेना है, तो मीडियन का सबसे पहला यही रूल है कि मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ओके। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 2 4 6 12 12 16 एंड 18। तो जब भी मुझे मीडियन और मोड निकालना है तो मेरा डाटा यहाँ पे, ये जो रॉ डाटा है, जब इस तरह से डाटा लिखा जाता है इसको हम रॉ डाटा कहते हैं। एक्चुअली डाटा दो तरह का होता है, एक होता है आपका अनग्रुप्ड डाटा, एक होता है ग्रुप्ड डाटा, ओके। ये जो डाटा है आपका दिस इज अनग्रुप्ड मीन्स जिसकी ग्रुपिंग नहीं हुई, रेंज नहीं बताई गई, जिस डाटा की मुझे रेंज नहीं बताई गई उसकी ग्रुपिंग भी आपको गिवन नहीं है कि वो किस रेंज के अंडर आ रहा है। जस्ट जैसे ही डाटा मैंने कलेक्ट किया वैसे ही लिख दिया, रॉ डाटा को हम अनग्रुप्ड डाटा की कैटेगरी में रखते हैं, ओके। अब अगर मुझे इसका मीन मीडियन मोड निकालना है तो मैंने इसको पहले अरेंज कर दिया 2 4 6 12 12 16 एंड 18, इस तरह से मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ओके। अगर मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो मैंने देखना है कि ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो इसमें मेरे दो फॉर्मूलाज आते हैं मीडियन निकालने के कि मेरी क्वांटिटी कितनी है। अगर मेरी क्वांटिटी ऑड है, जैसे यहाँ पे 7 है, तो मुझे यहाँ पे एक मिडल टर्म निकालनी है। मीडियन का मतलब होता है कि मिडल टर्म क्या है,
ओके, मीन आ गया एवरेज, एवरेज मीन्स 10 की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो 10 के आसपास है। ओके, मीडियन में क्या है कि हमें एग्जैक्टली डाटा का मिडल वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए पहले मुझे मिडल पोजीशन पता होनी चाहिए। अगर तो आपकी ऑड है तो यहाँ से जब मैंने डायरेक्टली जज किया तो ये वाला मेरा मिडल नंबर आ गया, 3 इधर और 3 इधर, तो यहाँ से मेरा डायरेक्टली जजमेंट हो गई। बट एक जनरल वे से कैसे जज करना है कि अगर आपकी क्वांटिटी ऑड है तो आप लिखोगे n+1/2th पोजीशन। तो यहाँ पे अगर 7 है, 7 + 1/2 दैट इज़ 8/2, और ये आपकी आ गई 4th पोजीशन। इट मीन्स 4th पोजीशन पे जो डाटा अवेलेबल है वो क्या आ गया, मीडियन। बट अगर आपको इवन आ जाता है, मान लो 8 क्वांटिटी आ जाती है या 10 क्वांटिटी आ जाती है, उसके लिए क्या करोगे आप, दो मिडल टर्म्स, ऑब्वियसली जब ऑड क्वांटिटी होगी और इवन क्वांटिटी होगी तो आपके पास दो मिडल टर्म्स आएंगे। तो आपने क्या करना है कि जो दो मिडल टर्म्स हैं पहले पोजीशन फाइंड आउट करनी है, उन पोजीशंस पे जो वैल्यू अवेलेबल है आपके डाटा में उसको फर्दर आपने एवरेज निकाल देनी है, तो वो आपका इवन डाटा आ जाएगा। सपोज़ इसी में मैं ये जो मेरा मीडियन है इसमें मैं एक और डाटा ऐड कर देती हूँ, 2, 4, 6, 12, 12, 16 and 18 and 90. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is first, second, third, fourth, fifth, 6, 7, 8. अब ये टोटल 8 एलिमेंट्स आ गए, तो 8 क्या है मेरे पास, इवन। 8 इवन होने की वजह से मुझे ये रूल अप्लाई करना है मीडियन निकालने के लिए, दैट इज़ 8/2th प्लस 8/2 प्लस 1th पोजीशन। ओके, देन डिवाइड बाई 2, पोजीशन को कभी ऐड नहीं करते, उसकी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। अब 8/2th क्या पोजीशन आ गई, 4th पोजीशन, और ये 5th पोजीशन, 4 + 1 5th पोजीशन, और डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे पोजीशन देखना है, 4th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, 12, 5th पोजीशन पे भी 12 है, तो आपकी एवरेज आ गई 24/2 इज इक्वल टू 12। तो आपका जो मीडियन है, ये दोनों मीडियन की कैटेगरी में आ गए, तो एक मीडियन की जो मिडल वैल्यू होती है वो इसके अंडर काउंट होगी, तो ये आपका 12 के अंडर काउंट होगी ये वाली वैल्यू। ओके, तो ये तो था आपका मीडियन। नेक्स्ट है मोड। मोड मीन्स कि आपके जो डाटा आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया उसमें कौन सा डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 12 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो आपने सीधा लिख देना है मॉड क्या है आपके पास, 12। मॉड मीडियन, मीडियन निकालने के लिए आपको इवन और ऑड चेक करना है। अगर ऑड है तो फॉर्मूला लगेगा पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए n+1/2th पोजीशन, और इवन के लिए मिडल की 2 पोजीशंस आ जाएंगी। उसके लिए ये तो डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो, पर कई बार आपका डाटा ज़्यादा हो जाता है, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो सिर्फ आपने क्वांटिटी काउंट करनी है, तो पोजीशन फाइंड आउट करनी है। बट रिमेंबर वन थिंग, मीडियन और मोड के लिए आपका डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, सो दैट इज़ मस्ट इक्वल। नेक्स्ट इज एक मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस है। हम ये दोनों तो एवरेज फाउंड करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज के नेम है, तो क्या रीज़न है कि हम मीन और मीडियन दो अलग अलग सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, दैट इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। सो आई विल गो विद वन एग्जाम्पल। सपोज आप घर में बैठे हो, घर में ये टीवी चल रहा है आपका, ओके, और यहाँ पे एक सोफ़ा सेट में घर के बच्चे बैठे हैं, और यहाँ पे घर के बड़े बैठे हैं, उनकी एज 85 ईयर्स है। यहाँ पे 4 चिल्ड्रन बैठे हैं, एक की 2 ईयर्स एज है, एक की मान लो 6 ईयर एज है, एक की 12 ईयर एज है, और एक की 8 ईयर एज है। ओके, तो यहाँ पे 4 किड्स बैठे हैं, और ये एक 85 ईयर, टोटल 5 कैंडिडेट्स बैठे हैं जो एक टीवी देख रहे हैं। ओके, तो अगर मैं इसको अरेंज करूँगी, अगर मैं इसमें इसका मीन निकालूंगी, जैसे मेरा डाटा आ गया यहाँ पे 2, 6, 12, 8 एंड 85। ओके, तो अगर मैं पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूँ तो मेरा टोटल निकालना ज़्यादा इजी हो जाएगा, मीन और मीडियन। अब मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस है, ओके, कहाँ पे ये वो वाली सिचुएशन में कहाँ पे अप्लाई होता है।
ये वाली सिचुएशन में कहाँ पे अप्लाई होता है, मीन और मीडियन। अब जैसे यहाँ पे 2 6 अगर मैंने अरेंज किया 2 6 8 8 एंड 5 सॉरी 85, टोटल 5 कैंडिडेट्स थे और 12 था यहाँ पर 2 6 8 12 एंड 85। अब ये 5 कैंडिडेट्स हैं तो आपने सबको ऐड कर दिया 8 + 12 + 85 बाय 5। अब ये आ गया आपका 8 + 8 16, ओके 16 + 12 28 + 85 बाय 5। अब ये आ गया 13 एंड 11, ओके 13 एंड 11। अब इसमें क्या आ गया आपका 113। जब आपने इसकी एवरेज निकाली 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 6 ज़ा 22.6, 22.6 राउंड अबाउट आ गया आपका 23, ओके। अब 23 का मतलब है कि इनको जो प्रोग्राम देखने चाहिए, ओके, वो एक एवरेज जहाँ पे आती है, इसकी जो भी एवरेज आती है उस एवरेज के अकॉर्डिंग टू, उस एज के अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम देखने चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक 23 ईयर एज का जो चाइल्ड है, ओके, उसकी डिफरेंट चॉइसेस होंगी। अब जो वो देख रहा है वो 6 ईयर वाले किड्स को भी नहीं अच्छा लगेगा, 85 ईयर वाले किड्स को भी नहीं अच्छा लगेगा, ना 8 ईयर, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन पे मीन वर्क नहीं करता, ओके। अब आ गया आपका मीन वर्क कहाँ पे करता है। मीन बेसिकली वर्क करता है आपका, जैसे अगर आपका मान लो मैथ्स टेस्ट हुआ है, ओके, तो जितने आपके मार्क्स आए हैं, अब प्रिंसिपल सर वांट्स टू नो अबाउट हाउ मच मार्क्स विल बी ऑब्टेन्ड बाय द 7th क्लास स्टूडेंट, ओके। तब उनको सारी डिटेल्स अगर देने जाएंगे 40 स्टूडेंट की, 80 स्टूडेंट की, तो इट विल बी हैक्ड। तो उस कंडीशन पे एक मीन एवरेज बताई जाती है कि हाँ इस नंबर के आसपास सारी क्लास के नंबर हैं। तो उस कंडीशन में सारे स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करके डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स की जाती है, वहाँ पर ये यूज़फुल है। पर जहाँ पे एक चॉइस आती है, जजमेंट आती है, जैसे यहाँ पे एक टीवी देखने, प्रोग्राम देखने वाली चॉइस थी, अगर वहाँ पे हम एवरेज निकाल के देखेंगे कि हाँ इनको 23 ईयर एज के लोगों के प्रोग्राम्स देखने चाहिए जो सबके लिए सुटेबल होंगे, सो दैट इज़ नॉट गुड आइडिया, तो उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन पे मेरा मीडियन वर्क करता है। तो मीडियन में मैंने देखा 2 6 8 12 और 85, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5th 1 2 3 4 5 पोजीशंस आ गई। तो मीडियन निकालने के लिए अगर ये मेरा 5 और नंबर है तो 5 + 1/2, तो ये आपका आ गया 6/2th पोजीशन, दैट इज 3rd, ओके। 3rd पोजीशन पे क्या है 8 ईयर्स, ओके। अब 8 ईयर्स का मतलब है कि मीडियन मेरा क्या निकला 8 ईयर्स। अब 8 ईयर्स वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 8 ईयर्स क्या दिखेगा ज़्यादातर कार्टून नेटवर्क, ओके। अब कार्टून नेटवर्क 2 ईयर्स को भी अच्छा लगेगा, 6 ईयर वाले को भी अच्छा लगेगा, 12 ईयर्स वाले को भी अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली 85 ईयर्स वाले को भी अच्छा लगेगा। तो इस कंडीशन पे जहाँ पे चॉइस वाली कंडीशन आ जाती है वहाँ पे हम मीडियन निकालते हैं। जहाँ पे हमें एक लमसम डाटा लेना है कि हाँ ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है इस डाटा के आसपास है, वहाँ पे हम मीन की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।